انڈیا کے ساتھ 4 جنگیں کی. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ہر دفعہ جو جنگ کی اس کے پیچھے ریزن جو ہے وہ کشمیر کا ہی ہوتا ہے. تو ابھی جو پوزیشن پاکستان کی جاری, کشمیری یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا, ہمیں یا تو انڈیا کے ساتھ رہنا یا ہم نے خود مختار ایک ریاست بنانی ہے. تو جو ہم نے اتنی قربانیاں دی, ہمارے اتنے دیکھیں 71 کی جنگ میں بھی 93,000 ہمارے فوجی جو ہیں وہ وہاں پر گرفتار ہوئے, اور سارا کچھ اتنے جانے دے کے ہم اینڈ پہ ہمارے ہاتھ حاصل کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. تو یہ آپ اس جو پوری جدوجہد کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ آیا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ صحیح معنوں سے صلح کر کے اور نیا ایک راستہ ہموار نہیں کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں, جو قوم آگے ہے نا تو وہ اپنی کچھ وجوہات ہیں ان کی بیسس پہ ہوتی ہے. مین چیز ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا ہے. جب تک ہماری اکانومی اسٹیبلائز نہیں ہوگی تو ہم کشمیر کیا, بلوچستان کیا, ہم اپنے پنجاب میں لاہور یا اسلام آباد جو ہماری مین سٹیز ہیں وہاں پہ بھی انویسٹ نہیں کر پائیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا ہے. وہ تو ماشاءاللہ وہ بہت آگے ہیں, پوری دنیا کو انجینئرز انڈیا سپلائی کرتا ہے. انڈیا اس لیے آگے, اور ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں انڈینز کی, اور انڈیا کو سلام ہے ہماری طرف سے کہ وہ جدوجہد کر رہے ہیں. وہ ایک مضبوط کنٹری ہے. ایک بہت ہی حساس سی بات ہے, اگر آپ مناسب شبد سے اس کا جواب دے دیں. ہمارے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جو بلوچستان کے حالات خراب ہوتے ہیں یا جیسے پشاور میں بم دھماکہ ہوا ہے, اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. آپ حقائق کیا ہے اس کے؟ یار ہو سکتا ہے, ہوگا, لیکن کیونکہ ہم نے 4 جنگیں جب کی ہیں وہ بھولے تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے جب ہم کسی کو دشمن سمجھتے ہیں, میں اگر آپ کو دشمن سمجھتا ہوں, آپ ظاہری بات ہے مجھے دشمن ہی سمجھیں گے, آپ مجھے بھائی تھوڑی سمجھیں گے. میں کہ جب آپ کی جو پبلک ہے, آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کی جو یوتھ ہے, انہیں بتایا یہی جا رہا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. حالانکہ انڈینز جو ہیں وہ ہمیں اپنا دشمن کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. آج آپ دیکھ لیں جو گوگل کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ انڈیا میں بن رہا ہے, مائکروسافٹ انڈیا میں چلا گیا ہے, ٹویٹر انڈیا میں چلا گیا ہے. تو جب ہمیں شروع سے ایک ہی بات فیڈ کی گئی ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے, انڈیا کو ہماری بالکل ضرورت نہیں ہے. ان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ریزروز ہیں $500 ارب ہیں, لیکن پاکستان کے پاس $3 ارب ہے. تو پاکستان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہمیں یہ دنیا کو, اپنے پنجاب کو, اپنے بلوچستان کو یہ بتانا چھوڑنا ہوگا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. ہمیں انڈیا کو ایز اے پارٹنر دیکھنا چاہیے اور انہیں تجارت کرنی چاہیے. ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ, میں ہوں مظفر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹ ری ایکشن. دوستو, آج جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. پاکستان اپنے کشمیر پر بہت زیادہ خرچ نہیں کر رہا, اور یہاں پر آپ پاکستان کے اپنے حالات دیکھیں تو وہ بہت زیادہ خراب ہیں. اسی کی وجہ سے جو اثرات ہیں وہ پاکستانی معیشت کے اوپر بھی ہیں, اور اس کا جو اثر ہے وہ پاکستانی سائڈ کشمیر کے اوپر بھی جا رہا ہے. وہاں پر ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے, جبکہ دوسری جانب انڈیا میں جو ہے 35,000 کروڑ روپے یونین بجٹ کا اعلان کیا گیا ہے انڈین سائڈ کشمیر پر. وہ پہلے ہی بہت زیادہ اپنے کشمیر پر فوکس کر رہے ہیں, وہاں پر لوگوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں. وہاں پر یونیورسٹیز, ڈیم, روڈز, مالز, پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر بن رہا ہے, جبکہ پاکستان بالکل اگنور کیے بیٹھا ہے اپنی سائڈ کشمیر کو. اور جانیں گے پاکستانی پبلک سے کہ یہ جو اثرات ہیں وہ کہاں تک آگے پاکستان کو لے کے جائیں گے, اور ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں یہ کشمیری جو ہے وہ اپنے احتجاج کے لیے باہر نکل آئیں یا کچھ اور وہ بڑا اقدام کر بیٹھے جس میں سے پاکستان کے ساتھ وہ اپنی اٹیچمنٹ کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جانیں گے پاکستانی پبلک سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے. تو چلتے ہیں پبلک کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, آپ کا نام؟ عزیز اللہ. محمد زبیر. جی کیا کرتے سر آپ؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں BSc انوائرمنٹل سائنس کا. اور آپ سر؟ میں فرسٹ ایئر کر رہا ہوں کمیونٹی کالج سے. تو آج جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ کشمیر کا ٹاپک ہے کہ پاکستان اپنے مسائل میں گرا ہوا ہے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو آئے دن کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, جیسے ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے, کبھی بجلی کے ریٹ بڑھ گئے, کبھی آٹے کے ریٹ بڑھ گئے. تو کشمیر کو ہم بھول گئے ہیں, جبکہ دوسری طرف انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا نے 36,000 کروڑ روپے اس دفعہ بجٹ میں اعلان کیا ہے کشمیر کے لیے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کشمیر سے دور تو نہیں لے کے جا رہی؟ ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ کشمیر کے لیے, تو اب کشمیر ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا, مجھے تو کم نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری ہوں. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے جو بھی آتی ہے اپنے مطلب مفادات کی خاطر عوام کو اگنور کرتی ہے. جیسے کہ آپ اپنے بلوچستان کی مثال لے لیں, بلوچستان میں کوئی صحت کے آپ دیکھ لیں, ایجوکیشن کے دیکھ لیں, انسٹیٹیوٹ ہیں. آج ہم اگر وہیں پہ یونیورسٹی ہوتی, سب چیز ہوتی,
تو وہاں کے لوگوں کا آپ بلوچستان سے بلونگ کرتے ہیں؟ جی میں بلوچستان سے ہوں, میرا ڈسٹرکٹ بارکھان ہے. تو آپ ایجوکیشن دیکھ لیں وہاں کی جو بھی سسٹم ہے, مطلب صحت کے لیے بھی جو سیریس مریض ہوتا ہے ہمارا وہ بھی ہم مطلب بلوچستان کا یہاں پنجاب لانا پڑتا ہے. نہ ہاسپٹل کی فیسلٹیز ہیں, جو بھی پولیٹیشین آتا ہے اس کو اتنی مطلب کھلم کھلا چھوٹ دی ہوئی ہے کہ لوگوں کا کانفیڈنس اتنا لو کیا ہوا ہے, کوئی بھی بات کرے تو اس کو مطلب پیسے دے کے یا کچھ بھی اپنے مفادات کی خاطر ان کو خرید لیا جاتا ہے. تو ان کا دماغ تو نہیں خراب ہے کہ کشمیری اپنا ادھر آج آپ ڈالر کی قیمت دیکھ لیں, مہنگائی دیکھ لیں, اور کیا نام ہے ایجوکیشن دیکھ لیں, صحت دیکھ لیں, تو وہ بالکل اپنا جہاں چاہیں. بلوچستان میں کوئی یونیورسٹی نہیں, آپ اتنی دور یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ یونیورسٹیز تو ہیں وہاں, اتنا مطلب ان کی فیس زیادہ ہے, 2 سے 3 یونیورسٹیز ہیں صرف کوئٹہ شہر میں, باقی کہیں نہیں ہے. جو چھوٹے چھوٹے کیمپسز ہیں ہم نے دیکھا اکثر لوگ یہاں پر مزدوری کرنے کے لیے, جاب کے لیے بھی بلوچستان سے ادھر آتے ہیں, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ وہاں پر آیا کہ مواقع نہیں ہے اتنے جاب کے؟ جی مواقع نہیں ہے, مطلب جو جہاں فیکٹریز ہوتی ہیں, جیسے آپ دیکھ لیں فیصل آباد میں فیکٹریز ہیں, تو لوگ ظاہری بات ہے یہاں آئیں گے. وہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ان کو وہاں پہ روزگار مل سکے, یا کوئی اچھا خاصا کوئی ریسٹورینٹ بھی نہیں ہے کوئی لوگ وہاں پہ جیسے جائیں. کہیں پہ آپ ہسپتال بناتے ہیں وہاں پہ تقریباً 15 سے 20 ایک ڈسٹرکٹ کے لوگ بھی لگ جائیں, کتنی بڑی بات ہے, کچھ بھی نہیں ہے ایسا. تو اسی وجہ سے کہ وہاں انڈیا کے ساتھ 4 جنگیں کی, آپ کو پتا کہ ہم نے ہر دفعہ جو جنگ کی اس کے پیچھے ریزن جو ہے وہ کشمیر کا ہی ہوتا ہے. تو ابھی جو پوزیشن پاکستان کی جاری, کشمیری یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا, ہمیں یا تو انڈیا کے ساتھ رہنا یا ہم نے خود مختار ایک ریاست بنانی ہے. تو جو ہم نے اتنی قربانیاں دی, ہمارے اتنے دیکھیں 71 کی جنگ میں بھی 93,000 ہمارے فوجی جو ہیں وہ وہاں پر گرفتار ہوئے, اور سارا کچھ اتنے جانے دے کے ہم اینڈ پہ ہمارے ہاتھ حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ آپ اس جو پوری جدوجہد کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ آیا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ صحیح معنوں سے صلح کر کے اور نیا ایک راستہ ہموار نہیں کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں جو قوم آگے ہے نا, تو وہ اپنی کچھ وجوہات ہیں ان کی بیسس پہ ہوتی ہے. مین چیز ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے, ان کا مائنڈ کام کرتا ہے. ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ان کے بس صرف لالچ ہے, ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی. جو ہماری عوام ہے, آپ یہ دیکھ لیں, اب ہم بات کر رہے ہیں, ہم الحمدللہ اتنا جانتے ہیں کہ پاکستان زیرو ہو رہا ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, مہنگائی ہے, لوگ مر رہے ہیں, غریب دیکھ لیں آپ. آج کل غربت ہماری کتنی پاکستان میں بڑھ گئی ہے, اس کی مین ریزن کیا ہے؟ ہماری پولیٹیشینز کو کچھ بھی مطلب تعلیم نہیں ہے, کچھ بھی انہیں مینیج کرنا نہیں آتا ہے, اور باری باری جو بھی آتا ہے بس وہ اپنا گھر بنا کے نکل گیا. انڈین میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ ہم سے آگے کیوں ہیں؟ یہاں پہ تھوڑا سا کمپیریزن کر دینا. یہ انڈینز میں جو بھی لوگ آگے ہوتے ہیں, جو جس کا نالج کی بیس پہ وہاں پہ ہوتی ہے, جہاں مطلب ان کی جو کمپیٹ کرتے ہیں, مطلب ان کے کمپٹیشن مقابلے کے طور پہ ہوتا ہے. یہاں تو سارا کچھ سفارش پہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کا حال ایسا ہے, یا تو سفارش ہو رہی ہے, یا مطلب آپ کہہ لیں کہ بہت کچھ ہے, پیسہ بھی چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے سٹارز ہیں, آپ سب کو دیکھ لیں, وہ اپنی قوم کو اپنی عوام کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں. کوئی ٹھیک ہے غریب ہر جگہ ہے, وہاں ہم یہ نہیں کہتے غریب نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں پورے ملک کو. مطلب اسی لیے انہوں نے سیکٹر میں دیکھیں نا, آئی ٹی کا سیکٹر ہو, انفراسٹرکچر ہو, میڈیکل کا ہو, ایجوکیشن ہو, ہر فیلڈ میں وہ ہم سے آگے ہیں. جس کی ریزن شاید یہی ہے کہ وہ لوگ اس میں اپنے میرٹ کے اوپر وہ سارے سب کچھ ان کا میرٹ کی بیس پہ چل رہا ہے. ان کے میں نے چھوٹی بات کی, یہ جو ڈانس ہم خود سمجھتے ہیں کہ یہ جو سٹارز بنتے ہیں, یہ اس کی پاکستان میں ویلیو بھی نہیں ہے. بھائی وہ ایک ٹیلنٹ ہے, جس میں بھی ہو اس کو بھی ویلیو دینی چاہیے. میں نے صرف یہ بات اس لیے کی ہے کہ پاکستانی اس چیز کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ایجوکیشن اور بات ہے, وہ تو ماشاءاللہ وہ بہت آگے ہیں. پوری دنیا کو انجینئرز انڈیا سپلائی کرتا ہے. انڈیا اس لیے آگے, اور ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں انڈینز کی, اور انڈیا کو سلام ہے ہماری طرف سے کہ وہ جدوجہد کر رہے ہیں. وہ ایک مضبوط کنٹری ہے. ایک بہت ہی حساس سی بات ہے, اگر آپ مناسب سمجھیں اس کا جواب دے دیں. ہمارے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جو بلوچستان کے حالات خراب ہوتے ہیں, یا جیسے پشاور میں بم دھماکہ ہوا ہے, اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. آپ حقائق کیا ہے اس کے؟ یار ہو سکتا ہے, ہوگا, لیکن کیونکہ ہم نے 4 جنگیں جب کی ہیں, وہ بھولے تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے جب ہم کسی کو دشمن سمجھتے ہیں, میں اگر آپ کو دشمن سمجھتا ہوں, آپ ظاہری بات ہے مجھے دشمن ہی سمجھیں گے, آپ مجھے بھائی تھوڑی سمجھیں گے. میں اس بیس پہ کہہ رہا ہوں ان کا ایجوکیشن, یار میرا اگر دشمن ہو مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے, خود کمپیٹ کرنا چاہیے اس کے لیے. بہت دل گردے کی بات ہے. یہاں پر پاکستانی جو ہے وہ انڈین کا نام سن کے ان کے منہ کے تاثرات آپ دیکھیں تو وہ ایسے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. نفرت نہیں, بے شک کرو, نفرت کرو, لیکن اس سے پھر مقابلہ بھی کرو نا. اگر کسی کو دشمن سمجھ رہے ہو اس سے آگے جاؤ. آج انڈیا کہاں کتنا آگے پہنچ چکا ہے. میں نے اس لیے تو اس کو
दाद दी है, हमें इससे कम्पीट करना चाहिए, इंडिया से आगे निकलना चाहिए। पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, ठीक है, बलूचिस्तान वाले भी किसी से कम नहीं है, पेशावर वाले भी, सिंधी भी, जो भी है, हम सब में अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज है, सब कुछ है, टैलेंट है, वैल्यू नहीं दी जा रही, कंपटीशन नहीं है, मतलब एजुकेशन जो कुछ भी है ना, हमारे लोग सब कुछ जानते हैं, अपनी बेस पे कितने बार की दुनिया में गए हुए एक चीज़ है कि मैंने देखा अक्सर लोगों को एजुकेशन, वो एजुकेटेड हैं लेकिन वो अवेयर नहीं है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें आया कि एजुकेशन और अवेयरनेस। अवेयरनेस है, बिल्कुल अवेयरनेस है। अभी देखें लोग बात करना नहीं चाहते, वो किस बेस पे, किसको सुनाए, वो अपनी बातें किसको सुनाए? सुनने वाला कोई होगा, कोई गवर्नमेंट होगी, कोई मेन इदारा होगा जो आवाम की सुनेगा, उसको सुनाई जाएंगी। इस साल की मैं आपको बात बताऊं, 7,65,000 लोग पढ़े लिखे हमारे चले गए। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो छोड़ के चले गए जी, तो हर साल अगर 7,65,000 लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हमारे जा रहे हैं तो अनपढ़ ही रह जाएंगे सारे, अनपढ़ ही रह जाएंगे, यही वाले लाहौर दफावा, अख्तर लावा, और क्या होगा पाकिस्तान में? जी सही बात है। तो हम सब बाद में ऐसे ही बचे हुए हैं। अब हर पाकिस्तानी, आप जिससे भी पूछ लें, आपको मेरे से ज्यादा इल्म होगा इस चीज का कि यहाँ पे ना मतलब एक खौफ हिरास है लोगों में, कोई भी ना इखलाक की बात नहीं है, किसी भी आप मतलब करने को नहीं तैयार कोई बंदा, कोई बात करने को भी नहीं तैयार है। अब ये मेन चीजें हैं, मतलब क्या है, शऊर नहीं फैलाया गया, सिर्फ एक हिर्स के पीछे, जिद के पीछे लगाया गया है। किसी की अगर बात की जा रही है उसके पीछे कोई दलाल नहीं है। बस जैसे आप कह रहे थे इंडिया का नाम लिया तो हम शुरू हो गए, जैसे आप कह रहे थे इंडिया का नाम लिया तो मैं शुरू हो जाऊंगा, मुझे कुछ पता नहीं होगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर मैं किसी से नफरत कर रहा हूँ, उसके पास मेरे पास जवाब होना चाहिए, मैं किस बेस पे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या है उसका, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। क्या करते हैं सर आप? मैं इधर BS इंग्लिश कर रहा हूँ GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, और वैसे मैं द डेली पाकिस्तान में एज ए ओपिनियन मेकर काम करते हूँ और दुनिया न्यूज़ के साथ भी वाबस्ता हूँ। माशाल्लाह जी। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर पे इतनी तवज्जो नहीं दे रहा है जितनी इंडिया दे रहा है। इंडिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है अपनी साइड कश्मीर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सेहत हो, डेवलपमेंट हो, हर चीज़ में उसने बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। और इंडियन जो साइड कश्मीर है वो लोग बहुत खुश हैं इंडिया से। अगर पाकिस्तानी साइड कश्मीर की बात करें तो वो पाकिस्तान से इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो हमने 4 जंगें की इंडिया के साथ इसी बात पे कि हमने कश्मीर लेना है, तो कश्मीरी अब खुद कहना शुरू हो गए कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। जब आप लोगों की सपोर्ट हासिल नहीं कर पाते तो एट द एंड आपको जंगों का फ़ायदा नहीं होता। अगर आज इंडिया कश्मीर में इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो एट द एंड जो कश्मीरी है उनकी सपोर्ट या उनका जो एट द एंड वोट बैंक है, उनका रेफरेंडम काउंट होना है। जंगों से कुछ भी नहीं होता। 4 जंगें आपने की हैं, आपने कुछ हासिल नहीं किया। तो अगर आपने कश्मीर को हासिल करना है या आप कश्मीर को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री भी देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको कश्मीरियों की सपोर्ट दरकार है। तो कश्मीरियों की सपोर्ट हासिल करने के लिए आपने जो अपना मीडिया है उसका पलड़ा के झुकाव करना है। कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में आपने जाके इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि कश्मीरियों को पता चले कि हमें भी ओन करने के लिए कोई मौजूद है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एट द एंड आया तो वो इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। अगर वो इंडिया के पास ना भी जाए तो फिर वो अपने इंडिपेंडेंट कंट्री का मुतालबा करेंगे, पाकिस्तान का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप वैसे क्या देख रहे हैं कि इसकी मेन रीज़न क्या है कि पाकिस्तान के आया जो माशी हालात हैं वो ज़्यादा ख़राब होने की वजह से सारी सूरत हाल बनी हुई है? जी बिल्कुल, मैं अभी देख के आ रहा था, पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट रिजर्व है वो $3 अरब तक आ चुके हैं। तो जब हम अपने मुल्क अपने एक अहम सूबा बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में और सिंध जैसे सूबों में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, हमारे पास इतना सरमाया नहीं है, तो कश्मीर में हम कैसे जाके इन्वेस्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है। जब तक हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं होगी तो हम कश्मीर क्या, बलूचिस्तान क्या, हम अपने पंजाब में, लाहौर या इस्लामाबाद जो हमारे मेन सिटीज़ हैं वहाँ पे भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है। आप ये बताएं कि हम कंपैरिजन करते होते हैं इंडिया, वैसे तो हमारा कंपैरिजन बनता नहीं, इंडिया हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है। तो क्या वजह है कि वो इंडियन जो हैं या इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, हर फील्ड में आगे? उसकी रीज़न क्या है? उसकी बात मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो वैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पिछले मैं बता ही देता हूँ आपको कि जब आपकी जो पब्लिक है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी जो यूथ है, उन्हें बताया यही जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हालांकि इंडियंस जो है वो हमें अपना दुश्मन काउंट ही नहीं करते। आज आप देख लें जो गूगल का हेडक्वार्टर है वो इंडिया में बन रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में चला गया है, ट्विटर इंडिया में चला गया है। तो जब हमें शुरू से एक ही बात फीड की गई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को हमारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनका जो करंट अकाउंट रिजर्व है $500 अरब है, लेकिन पाकिस्तान के पास $3 अरब है। तो पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए हमें ये दुनिया को, अपने पंजाब को, अपने बलूचिस्तान को ये बताना छोड़ना होगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हमें इंडिया को एज ए पार्टनर देखना चाहिए और उन्हें तिजारत करनी चाहिए। इंडिया के साथ ट्रेड करने में क्या हमें मसला क्या, क्यों नहीं ट्रेड हो रही वहाँ पे?
इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इंडिया के साथ ट्रेड इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इंडिया को शुरू से हमें दुश्मन के तौर पे बताया गया है। जब हम दुश्मन का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है इंडिया, तो इसलिए जब इंडिया को ऐसे दुश्मन दिखाया जा रहा है तो कैसे आप पब्लिक की सपोर्ट नहीं ले जब पाएंगे। स्कूल में जाते हैं या हम सबसे पहले हमें यही चीज़ बताई जाती है कि हमारा दुश्मन इंडिया, हमारी उसके साथ जंगें हुई हैं और उसने हम पे कब्जा करने की कोशिश की, ये किया वो किया। जबकि इंडियन से जब बात हो ना तो इंडियन कहते हैं कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। हमें जो पाकिस्तान से बातें सुनने को मिलती हैं उसके रिजल्ट में फिर हमें पता लगता है कि जी अब हमें भी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करनी है। तो ये सारी चीज़ें कैसे सेटल डाउन होंगी, ये हमारे जो माइंड सेट बनाए जाते हैं, ये कब ये चीज़ें ख़त्म होंगी और हम एक अच्छे हमसायों के तौर पर आपस में रहेंगे। जी बात ऐसी है कि इंडिया तो इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने कभी कोई कोशिश छोड़ी नहीं है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, हमेशा से को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन मैं आपको बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें इस ख्वाब से निकलना होगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। दुनिया में और भी मैदान मौजूद हैं, अगर आप उनको जंगी मैदान से निकाल दें, जंगी मैदान हमेशा आजकल तो जो जंगी मैदान है वो ख़त्म हो चुका है। आप उनको इकोनॉमी में टॉर्चर करें, आप उनको इकोनॉमी में झटका दें, जो कि आप बिल्कुल नहीं दे पा रहे। दूर दूर तक हमारा उनसे मुकाबला कोई नहीं है। तो हमें बेसिकली सबसे पहले ये देखना है कि इंडिया हमारा जंगी सिर्फ दुश्मन नहीं है, इकोनॉमी में भी दुश्मन है, पॉलिटिक्स में भी दुश्मन है, फॉरेन पॉलिसी में भी दुश्मन है। सिर्फ जो दुश्मन है वो जंगी मैदान तक, टैंकों तक, मिसाइलों तक या हवाई जहाज़ों तक नहीं है। इकोनॉमी में आप उन्हें मार दें, सोशल मीडिया में मार दें, फॉरेन पॉलिसी में मार दें। आपको अपने स्टूडेंट्स को, अपनी यूथ को, अपनी आवाम को ये बताना होगा कि दुनिया में और भी डोमेन्स मौजूद हैं हराने के लिए, ना सिर्फ सियालकोट या इंडियन बॉर्डर, और भी काफ़ी मैदान मौजूद है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तो कैसे आप कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, और एक अच्छा पैगाम हमारे इंडियन जो देखने, हमारे जो ज़्यादा चैनल जो इंडिया में देखा जाता है, उनके लिए कोई अच्छा पैगाम भी एक दे दें। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपने बेचारे पॉलिटिशियंस को अप्रिशिएट करता हूँ कि उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो भी यूथ हो जाते हैं। तो वो भी मे भी इंडिया को अपना दुश्मन ना समझते हो, लेकिन उन्हें समझना पड़ता है क्योंकि उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो पॉलिटिशियंस को ये हिम्मत करना होगी कि वो इस बात को डिक्लेयर करें कि अगर इंडिया हमारा दुश्मन है तो सिर्फ जंगी दुश्मन नहीं है, वो हमारा मुआशी दुश्मन भी है, हमारा फॉरेन पॉलिसी में भी दुश्मन है, और भी काफ़ी हर चीज़ में मुकाबला होना चाहिए। सोशल मीडिया सारा इंडिया, जो ट्विटर है, गूगल है, इंडिया में मुंतकिल हो गया हुआ है। तो सबसे पहले पॉलिटिशियंस को ये हिम्मत करना होगी और पाकिस्तानियों को ये बताना होगा कि सिर्फ जंगी मैदान नहीं है। सबसे पहले आप ये कर लें, और दूसरा पाकिस्तानी अवाम को भी समझना होगा कि हमारी इंडिया के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। बेशक आज तलखियाँ मौजूद है, लेकिन हमारी 1000 साल तारीख में हम उनके साथ इकट्ठे रहे हैं। तो लोग कभी भी आपस में दुश्मन नहीं होते। हाँ, कुछ इदारों की, कुछ लोगों की दुश्मनियों की वजह से लोग भी आपस में दुश्मन हो जाते हैं। तो लोग कभी भी दुश्मन नहीं होते। लोगों के दरमियान दूरियां पैदा करना बंद कर दें और आवाम को जीने दें, और उनको बेसिक जो हकूक़ है आप वो दे दें, तो ये सफिशिएंट होगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा ज़ुबैर, ये बताएं कि जैसे अब बात हो रही थी कश्मीर की, कि पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी जब से पाकिस्तान बना है, 47 से लेके आज तक। हम इंडिया से हमारे ताल्लुकात कश्मीर की वजह से ठीक नहीं हो सके। हमें ये बताया गया कि जी जो है वो कश्मीर, जो जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। अब देखिए, कश्मीर को अगर एक तरफ रख के हम अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के भी बेशुमार मसाइल हैं, और मुझे तो आजकल जो सिचुएशन नज़र आ रही है, बलूचिस्तान की सिचुएशन भी कश्मीर वाली नज़र आ रही है। तो आपके ख्याल में बलूचिस्तान के जो मसले हैं वो आया कि वो ऐसे ही है जैसे कश्मीर है, या कुछ उसमें कुछ बेहतरी है वहाँ पर? बलूचिस्तान में जो हालात हैं इस वक्त वो इस तरह हैं कि ना वहाँ पे कोई तालीम का आजकल निज़ाम है, ना कोई सेहत के हवाले से सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि हमारे जो बलूचिस्तान की जो अवाम है वो इस कदर उनको डराया और वहाँ पे यानी कि खौफ फैलाया हुआ है कि हर आए रोज़ वहाँ से मायूसी की जो खास वजह है वो ये है कि हर आए रोज़ जो भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है आज, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा। अच्छा, कहीं ऐसे तो नहीं कि आप पंजाब को देखकर आपके अंदर एहसास कमतरी आपके पैदा हो जाती है कि यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट है, पंजाब के अंदर सड़कें बनी हुई है, तो ये जी पंजाब बिल्कुल हमारा भाई है, हम वो बात नहीं करते, लेकिन जो बलूचिस्तान है वो भी इस मुल्क का हिस्सा है। उसे भी यानी कि उसका हक, बुनियादी जो उसके हकूक है वो उसे मिलने चाहिए। हर आए रोज कई खानदान ऐसे हैं जहाँ से हमारे नौजवानों को उठाया गया है, और खास करके जो अपने हक के लिए बोल रहा है। तो कश्मीरियों की जिस तरह आपने बात की है कि कश्मीरी हमारे साथ से जुदा होने की जो बातें या अफवाहें चल रही हैं, ये बिल्कुल वैलिड हो सकती हैं, क्योंकि
जहाँ पर अवाम खुद महफूज नहीं होगी तो वहाँ पर कश्मीर हमारे साथ बिल्कुल नहीं आना चाहेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ वो भी देख रहे हैं, हम भी उन्हें देख रहे हैं, हर चीज़ से हम आगाह हैं। जहाँ पर देखे जो हमारे पाकिस्तान, अभी पंजाब हमारा भाई है, जिस तरह आपने बोला है कि हमें ऐसा से कमतरी में इस तरह से महसूस नहीं होता, लेकिन ये अभी हम कहना चाहेंगे कि बलूचिस्तान जो है वो हमारा इस मुल्क का जो है वो हिस्सा है, और इतना बड़ा सूबा है, उससे इतनी ज्यादा मदनियात, इतने ज्यादा फवायद पंजाब और पूरे पाकिस्तान को मिल रहे हैं, हमें भी इससे मिल रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि आपको महसूस, आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कहा कि हमें पंजाब की तरफ देख के एहसास कमतरी का हम शिकार नहीं होते, तो फिर वहाँ पर पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देकर उन्हें मार क्यों दिया जाता है कि वो सिर्फ पंजाबी? ऐसे वाकयात हुए ना वहाँ पर कि बस को रोका गया? बसों को रोका गया होगा, लेकिन वो चंद जो तशद्दुद पसंद लोग हैं, आज आपको पता है पेशावर में जैसे ब्लास्ट हुआ है, कोई नहीं जानता। हम स्टूडेंट्स हैं, आप भी माशाल्लाह फैसलाबाद के रहिशी हैं, फैसलाबाद में खड़े हैं हम, कोई नहीं जानता है। हमारी सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जानता है ना तो एजेंसीज को पता होगा, क्योंकि उनके हाथ होंगे, देख रहे हैं, उनकी इतनी खोज होनी चाहिए, होगी, हमें उम्मीद है उनको पता होगा, वो पकड़ेंगे। दहशतगर्द हैं जो भी है, अपने दुश्मनों को पता होता है, जिसका जो काम होता है वो उसे पता होता है। इस वाक़े तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना कि पंजाबियों को वहाँ पर टारगेट किलिंग किया गया है। नहीं किया गया, मेरे सामने तो किसी को नहीं। अगर आपका कोई खानदान या आपका किसी भी दोस्त को किया गया तो आप देखें वहाँ पर कान जो थे, जितने मजदूर थे वो पंजाबी थे, उनको देख के मारा गया कि ये पंजाबी हैं या नहीं पंजाबी। ऐसे कुछ लोग बनाए जाते हैं कि आपस में आवाम एक दूसरे से नफरत करे, जैसे हजारा के साथ हुआ है, बलोच के साथ हुआ है, पठान के इलाके में बलोच के साथ होता है, हजारा कम्युनिटी में बलोच के साथ हो जाता है, ऐसे जहाँ पठान के इलाके में बलोच के साथ हो जाता है, ऐसे भी वाक़यात हैं। पंजाब में बलोचों के साथ हो जाता है, हजारा का बलोचों के कम्युनिटी में हो जाता है। ये आपस में क्या आवाम एक दूसरे से नफरत करे, अब ये अल्लाह ही जानता है कि कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। आवाम को अब सब पता है, ठीक है, ये सोशल मीडिया है, सारे देख रहे हैं, सब समझदार हैं और दिन रात एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो लोग हैं उनकी बेसिक जो है रिक्वायरमेंट क्या है, उनके मुतालबात क्या है कि बलूचिस्तान को अब आज़ादी, वो कुछ लोग कहते हैं कि जी बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहिए, खुद मुख्तार होना चाहिए। वैसे वहाँ की आम जो आवाम है वो क्या मांगती है, उनकी डिमांड क्या है? आवाम जो है वो ये चाहते हैं कि जिस तरह के यहाँ पे हमारा पंजाब है, या इसमें यहाँ पर जो मयार तालीम है, सबसे जो बुनियादी चीज़ है, तालीम हमें मिलनी चाहिए, और हमारे जो सेहत के हवाले से जो हमारे मामलात हैं उन्हें बेहतर होना चाहिए। हमारे मरीज कोई होता है, कोई सांप काट लेता है, कोई वबाई मर्ज आ जाता है, तो हमें वहाँ से तकरीबन सैकड़ों हजारों किलोमीटर हम दूर आते हैं वहाँ से, जो कि रास्ते में ही काफी लोग मर जाते हैं। कोई वहाँ पे फिर रोड नहीं बने हुए, वहाँ पे नदियाँ, बारिश हो जाए, पानी आ जाता है, वहीं पर लोग वहीं पर तड़प के मर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है हमारा सेहत का जो मतलब एक निज़ाम है वो इतना नाकिस है, इतना खराब है कि वहाँ पे यहाँ तक कि किसी सांप के हवाले से भी कोई टीका या इंजेक्शन मौजूद नहीं है कि वहाँ पे फौरी तौर पे कोई इलाज किया जाए। आज रिसेंटली हमारे यहाँ इलाके में एक बंदा जो है वो पानी के डैम में डूब गया था, तो 5 घंटे तक उसकी लाश नहीं मिली। इसका क्या वजह है कि वहाँ पे रेस्क्यू नहीं था, वहाँ पे सहूलियत मौजूद नहीं है। अगर वहाँ पे बुनियादी हकूक, हमारे सेहत के हवाले से हमें हकूक दिए जाए, हमारे तालीमी हवाले से दिए जाए, तो हम यहाँ कोसों दूर अपने घर वालों को छोड़कर, हमारे कुछ लोग मजदूरी के हवाले से आते हैं, कोई यहाँ पे, हम जिस तरह हम स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, अगर वहाँ पे तालीम का मयार सही हो तो हम भी अपने घर बैठ कर पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ पर जो सेहत के मामला अगर सही होंगे तो हमारे कई जानों का जो नुकसान हुआ है वो उससे मतलब उसकी रेशो कम हो सकती है। अच्छा, ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अब जो एक तहरीक चली हुई है, ये पाकिस्तान जो कमज़ोर हो रहा है, जैसे सिंध के अंदर सिंधु देश की बात हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान वालों ने बोला कि जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाह रहे, कश्मीर के अंदर भी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, इसकी वजह क्या आप समझ रहे हैं, इसकी मेन रीज़न क्या है? जी, उसकी मेन रीज़न यही है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ को ऊपर से, जो हमारी गवर्नमेंट्स है वो ऐसे कोई इकदाम नहीं करते कि आवाम को खुश रखा जाए, उनको मतलब सारी फैसिलिटीज दी जाए सेहत के लिहाज से, एजुकेशन, जो मतलब आवाम को मतलब परेशान किया हुआ है हर तरह से। आवाम कैसे खुद बगावत का शिकार है आवाम। देखिए ना, हालात तो पंजाब के हालात भी आपके सामने, पंजाब में भी कोई इतने अच्छे हालात तो नहीं यहाँ पर, लेकिन अलहदगी की बात नहीं हो रही, बाकी सूबों में क्यों हो रही है? पंजाब सबका बड़ा भाई है, और यहाँ पे पंजाब की जो आवाम है वो आबादी ज्यादा है, ठीक है, ये आवाज नहीं उठाते, या वो जो कुछ भी है आवाज उठाने वाले भी हैं, आपको शायद पता नहीं हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ बलूचिस्तान से, गिलगित से ज्यादा अच्छे लिखे इल्म वाले लोग हैं, पढ़े लिखे, जो बात भी कर रहे हैं और अपने तहरीकें चला रहे हैं, बातें करते हैं, वो बलूचिस्तान के हक में भी करते हैं,
गिलगित के हक में भी बातें करते हैं, ठीक है, फिर ऐसे बगावत आती है यार, आपको हर जगह से नजर आएगी। जब आपको हकूक नहीं मिलेंगे, जब आपके हक में बात नहीं की जाएगी, तो आप किसी न किसी तरह आप भी परेशान करेंगे किसी को। वो मेन रीज़न यही है कि सबको अपना भाई समझ के और आवाम को रिलीफ दिया जाए, उनको अपने सारे हकूक दिए जाए, आटा की जो भी कीमतें हैं उनको कम किया जाए, घी को, गरीब लोग हैं उनको और क्या चाहिए, फैसिलिटीज़, एजुकेशन दी जाए। अब हर किसी की, अगर फीमेल्स की हमारी जो एजुकेशन है, वो आप हमारे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बारखंड की देख लें, वो 11% है, 11%। जो वहाँ पे जैसे भाई ने बताया था, सेहत का इतना निज़ाम बिगड़ा हुआ है, अगर कोई वहाँ साहब की इंजेक्शन सरकारी हॉस्पिटल में आती है, वो भी 3 दिन बाद गायब हो जाती है, बिक जाती है या इधर उधर कहीं चली जाती है। अवाम इतना तक मतलब जलील हुई पड़ी है। तो वो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन है, इस सिस्टम को ठीक किया जाए, जो लोग मुसल्लत किए गए हैं उनको, ताकि मतलब ख़त्म किया जाए, जो पॉलिटिक्स है जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद ताहिर अयूब। ताहिर साहब क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ताहिर साहब, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान फोकस नहीं कर पा रहा। जबकि दूसरी तरफ इंडिया की अगर बात करें तो उन्होंने 36,000 करोड़ रुपया इंडिया के लिए मुख्तस किया है। तो पाकिस्तान बिल्कुल भी जो है वो तवज्जो नहीं कर पा रहा, पाकिस्तानियों के ऊपर तवज्जो नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने कश्मीरियों के ऊपर क्या तवज्जो करनी। तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे, क्या देख रहे हैं आप? इसके नतीजे जी, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, सारी बात है कि गरीब आदमी जो है ना वो पिसता जा रहा है। जैसे कि आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी हुक्मरान आता है ना, वो अपनी जेब भरता है, गरीबों का वो नहीं सोचता। ठीक है, जब तक हुक्मरान जो है ना वो गरीब का नहीं सोचेंगे ना, इधर यही हालात रहेंगे। बाहर वाले को भी वो कौन सा अंधे हैं, उनको भी तो पता है कि हम पैसे भिजवाते हैं, कोई कुछ खा रहा है, कोई थोड़े वो खा रहा है, थोड़े वो खा रहा है। ठीक है, हालांकि जो पैसे बाहर से आते हैं, हमें इसकी उनसे उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। अपने ही मुल्क में ऐसे ऐसे फैसिलिटीज देनी चाहिए ताकि कारोबार भी अच्छा हो, जो सैलरी पर्सन बंदा है उसका भी जो गुजर बसर है ना, अगर वो खुशहाल है ना तो पाकिस्तान खुशहाल है, अगर वो पिस रहा है तो फिर पाकिस्तान तो सर ये क्या वजह है कि इंडिया में हालात सारे सेटल्ड हैं, वहाँ पर महंगाई भी बहुत कम है, वहाँ पर हर चीज़ जो है बिल्कुल स्मूथली चल रही है, उसकी क्या रीज़न, आप क्या समझते हैं कि इंडिया में हुक्मरान ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा मेहनती हैं, क्या चीज़ है वहाँ पर कि जो उनको बेहतर हमसे बनाती है? असल में बात पता क्या है, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि अपने मुल्क की चीज को इस्तेमाल करते हैं। हम जो है हमने इस मुल्क की करनी है, चाइना की करनी है, तो सारी चीजें इंपोर्ट होती है ना, वो सारी चीजें जो है वो अपने मुल्क के अंदर तैयार करते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है जो हमसे वो ऊपर जा रहे हैं ना। आप बांग्लादेश देख लें, वो भी हमसे ऊपर ही जा रहा है। हालांकि वो कहते थे कि ना कि वो पाकिस्तान का हिस्सा ही था, लेकिन उन्होंने खुद स्टैब्लिश किया अपने आप को, अपने मनवाया। हाँ जी, अलग हुए हैं और वो देखे कि कहाँ पे चले गए हैं। ठीक है, जहाँ पे जब तक हुक्मरान और अवाम ठीक नहीं होगी ना, तो इधर कुछ भी नहीं बनना है, इनका ऐसे ही रहना है।